Okay. So let's see increment and decrement operator and how additional shortened representation of addition and subtraction operator. So let's see how increment decrement operator works. So for example, define one variable called value, where value is 3. Okay, and I am printing this. I'm incrementing it using increment operator or decrement operator, right? So what is it? Value plus plus. So what is the output? 4. ये प्लस 4 प्लस क्या करता है? इसका 8 मतलब क्या है? increment of इसका Increment of एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस 1, 1. राइट? प्लस प्लस ऑपरेटर मींस वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस 1. So what is the output? You can see. Let's see the console. 4, right? And it is similar to plus plus operator. But plus plus, what does it mean? Increment operators. Look, so now the output is 3. Why? And if I am printing this just below it, this value without let's remove this, then what is the output? 4. So why this is? सर जब हम प्लस प्लस बाद में लगाते हैं ना, तो वो वैल्यू बाद में वैल्यू तो हो इंक्रीमेंट हो गई है, बट वो प्रिंट बाद में करेगा. इंक्रीमेंट नहीं हुई है, it will not incremented this. Right now what happened? I am printing this value plus plus, means in value right now the value is 3. The value variable content the value contain the value 3. After execution of this, it will increment this value, right? After right now it is just displaying this. So when the execution will be completed, when the control completely execute this and go to the next statement, then this plus plus operator will be execute, right? Okay sir. Right. So right now it is printing 3, but as soon as you print it later on, it will display 4, right? This is called post increment. But if you use this here plus plus, then first it will increment, then store in value, right? First it will increment. Look, now it is 4. Why? Because it is in pre-increment, because first the value will be increment, then store in value variable. Clear? So be careful whenever you use increment or decrement operator. So pre-increment and post-increment is very important, right? Same the case of minus minus and plus plus. Now it is 2. It is 2, right? Why it is 2? Because initially it was 3. The value was 3, but but when it is stored, first it decrement by 1 and store in value. But if you use minus minus after the variable, then it will 3 and 2. Clear? So कोई doubt है? No, sir. Okay. So same, if we see the shortened representation of plus equal to assignment operator and arithmetic operator. So what does it mean? For example, if you want to do something like value equal to value plus 2, 3, right? तो उसको हम और एक shortened representation कैसे लिख सकते हैं? So ये value में क्या store होगा अभी? 6, right? So value plus 3 equal to 6. So 3 plus 3 equal to 6. But इसको हम shortened representation कैसे कर सकते हैं? ना like this. Value plus equal to.
plus equal to 3. The same output you can see over here, right? So plus equal to means value equal to value plus 3. So this alternate representation of value equal to value plus 3 is value plus equal to 3. Same in case of plus, you can use minus. Also it will work. 3 minus 3 equal to 0. If you use star, also it will work. If you use any division, also it will work. Clear? If it is modulus, power, also it will work. 3 to the power 3 equal to 27. Modulus also it will work. Clear? Plus equal to, minus equal to, star equal to, what does it mean? Plus Increment. and yes. Clear? सो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन कैसे है ये, क्योंकि हम इतना बड़ा लिखने से अच्छा वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस 3 और वैल्यू इक्वल टू वैल्यू मॉडुलस 3. So instead of doing that, we can write directly value modulus equal to 3. Okay, these are shorthand representation. And increment decrement operator also I explained, which was here in the base. And assignment operator, you know, the single equal to is used for assigning value from right side to left side. Always value will be stored in the left side, and the value will be always in the right side and variable in the left side. So whatever the value or anything you are writing in the left side will be stored into the left side. Clear? So perform calculation with assignment with arithmetic operator combination, shorthand representation also, you know, increment decrement operator is also clear. So now let's go to the object in details. It is also very important chapter, just like functions. So जैसे function में दो चीज अभी भी pending है, just explain, I am explaining you. One is closure, another is the call, bind and apply. Bind already बता चुका हूँ, but again I will explain it in this section as well. And call and apply. Clear? So now ऑब्जेक्ट लिटरल नोटेशन हम पढ़े हुए थे ऑलरेडी, वी हैव लर्नड, राइट? बट कुछ और चीज हम डिटेल्स लेवल में हम देखेंगे. लेट मी कॉपी दिस एग्जांपल एंड मेक यू अंडरस्टैंड. ऑब्जेक्ट लिटरल तो आपको पता ही है. इज इट विजिबल क्लियरली और वी वांट टू, आई वांट टू मेक द फॉन्ट लार्जर? Clear, sir. Clear. विजिबल, ओके. So ये जो एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, you can see it is a object literal notation. I have already explained that there are different way to create an object. So first one is, it is a simple one, which is object literal, means it is a literal notation of object. This is also an object, right? Object, if you want to access any key from this object, you can use the dot convention, right? Or square convention like this. Person is object name, then this is the property name. I will explain in details. And the another way to create the object is constructor function. It is simply same. You can see the similar way of defining the constructor function like a function, normal function, but there is a simple difference. I will explain later on. And the third way to defining this object is class, which is when you learn the object-oriented JavaScript, then you can see it. So right now we will focus on the literal notation, which we have already known. Already we know it, right? So this literal notation is something like key value format. The left side is the key and right side is the value, and we can define multiple type of data or store multiple type of data. What does it mean? To any key, like name can contain an array, can contain another object, can contain a method,
which is called a function. Also inside the object we can say it is a method. Then number, any type of array, any type of value we can store in any key, and you can access likewise. Is it clear? But पहले जो मैंने बताया था, the variable, the key name is always just like an variable name, right? but यहाँ पे कुछ अलग चीज भी लिखा है मैंने. क्या है कि की जो डिफाइन किया यहाँ पे, की जो बनाया मैंने, द की समथिंग like not like an variable. You can see there is a space in between. I also define a key which is nothing but a number, right? So does it work? Yes, it works. Clear? If somebody define the object in the same manner, it will work, but make sure the key should be enclosed within a double quote or single quote, right? So this way, this representation is also correct. JavaScript consider it as a valid key. Okay, so जैसे हम पहले एक्सेस करते थे, कैसे, जैसे person now is object. Now if I want to access any property like name, then person dot name also I can access, right over here, right? So I can access it in dot convention, right? But I cannot access this last name with dot convention. ये जो last name है, I cannot access in dot convention. ऐसे लिखूंगा तो एरर देगा. देखो एरर दिखा दिया, क्योंकि ये कोई वेरिएबल नहीं है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नहीं है, तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ. To access this, there is another way. You can see the square bracket. Inside square bracket with as a string, you can put the key over here. Is it clear? And if it is a number, then of course you can put something like 1.5 simply. If it is not putting anything double quote inside or outside it, it will work. But still you can okay. If we can, as it is a number, then it is not required to put double quote over here. Still it will work. But if you want to put the double quote inside this key, it is okay. You can get the value. So this is the oldest way, as I explained earlier, the dot convention of accessing key, right? It also work. Then this is also the another way of accessing the key, and it is the robust way. Always you should follow this one rather than this one. Okay, but make sure if you are using dot convention, then your key will be in the proper format, just like JavaScript variable. You should not throw an error, right? But if you want to use this also, it is a perfect and robust way. ये कोई भी की हो सकता है, it will not create an error. अब सपोज ऑब्जेक्ट के अंदर और एक ऑब्जेक्ट है, देन थर्ड लेवल एक्सेस कैसे करते हैं हम ना, पर्सन डॉट नेम डॉट फॉर एग्जांपल एड्रेस, राइट? you can third level object you can access like address, right? But same, if you want to access it in square bracket notation, then you can just use this one, right? Another address. Clear? Now make sure you cannot put something like this. ऐसे नहीं डाल सकते हैं, शायद डाल सकते हैं. Let's see. Let's remove this. Yes, we might use this. Sorry. Yes, we can use it. No, it will not. It will not work. So you have to, it is mandatory to use single quote. Clear? Any doubt till now?
No, sir. क्लियर? ओके, सो अभी ऐसे कोई प्रॉपर्टी है, you can see, let me comment those out. Now you can see accessing a property which is not in this object. अभी ऑब्जेक्ट में कोई की नहीं है and you want to access it, then what will be the output? Undefined. It will not throw an error. ऐसे नहीं बोलेगा वो कि ये वेरिएबल नहीं है। जैसे कोई वेरिएबल होता, if it is simply just a variable like inside any scope, then if you are not declare it using let var or const whatever the way, then it will throw and definitely throw an error, right? It will throw an error or not? Yes. But in case of object, it will just undefined, because whenever you try to access it, it is internally declare this variable like key, declare the key, but the value is of course by default undefined. So if you want to access it, it will throw output will be undefined. Clear? It will not throw an error again, remember. Okay, so how can we edit or adding any property to this object? So look at this. So if you want to access this isAdmin key without declaring or assigning a value, then you can get it undefined. The value will be undefined. But in this case, I can, because I am not declare any keys like isAdmin over there, but I can dynamically create the key and assigning value like this. So this person is the object name, then isAdmin is the key, and value equal to true. Either you can use dot convention or you can use square bracket convention with the key name will be inside double quote, right? So look at it. First I am assigning this value as a true, again I am assigning the value as false. Now what is the output? The ultimately the latest one will be override to the earlier one, right? So earlier one value will be isAdmin is true, but latest one value is false. So this console will print false, right? I also explain, I also add another variable. So age is already there, but I just update the value over here 30 to 31. Then look at the object. What is the output? So as I explained, you can see first it was true, then I override this as a false, then the latest value will be false. Is it clear? Now look at this value right now, also object right now. So you can see the object is modified, means key are like the 1.5. So key, you can see the keys are sorted. It is by default, if you see over here, it is sorted always. So you can see why it is the 1.5. Okay, it is number because it is there, but last name A is there, but why last name is just above it? Can somebody explain the sorting? Because I have not explained the sorting, that's why you don't know. Sorting is depend on the ASCII value. Do you know what is the ASCII value of capital L? The small a started from is usually start from 97, I think, ASCII value. Yes, sir. Right? And capital letter is within 97 to 57, something like this. So 65. 65 to 65 to 97, 97, right? So ये पहले आता है 96, लास्ट कैपिटल एल पहले आता है, और 1 2 3 उससे पहले आता है, उसके ASCII is very less. So ये ASCII वैल्यू के हिसाब से सॉर्टिंग होता है, that's why ये इसके अंदर दिखाता है, बट वो सॉर्टिंग जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा, राइट? तो ये देखो ऑब्जेक्ट, अल्टीमेटली आवर एम इज टू सी द ऑब्जेक्ट हाउ इट इज अल्टर्ड or changed. So the key also isAdmin is added over here, and the value age is 31 is changed, right? So तुम literal notation ऑब्जेक्ट में वैल्यू डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, बट द इनिशियल वैल्यू को अभी बैकअप नहीं ले सकते हो. रिमेंबर,
इनिशियल जो भी वैल्यू रखा था उसके ऊपर ओवरराइड हो जाता है, वी कैन नॉट गेट बैक अगेन। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब मैं अनडिफाइंड नल बताया था आप लोगों को। अनडिफाइंड किसी वैल्यू को हम सपोज फ्लश करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करना चाहिए, हमको क्या यूज करना चाहिए? नल, सिंपली, राइट? यस और नो? Yes, देखो sir. यहाँ पे एज इक्वल टू मैंने पहले क्या किया, अनडिफाइंड किया, तो पहले पर्सन का देखो इसके अंदर क्या आया, एज में एज को अनडिफाइंड किया और एज को नल किया, बट ये यहाँ पे नल ही दिखता है। तो अनडिफाइंड करके कभी ऐसा ही नहीं किया जाता है, रिमेम्बर। किसी को सपोज वैल्यू रिसेट करना है, किसी में सपोज वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है द वैल्यू विल बी अनडिफाइंड, जैसे मैंने इज एडमिन दिखाया था इनिशियली। बट जब if you want to clear some value in some key or variable, then you have to use by default null। मैं undefined यूज किया तो अभी वो कुछ भी नहीं लिया, वो null ही ले रहा है, right? So always use null to reset any value of any object, any key of an object। Clear? Yes, sir. Deleting any property, आपको कोई प्रॉपर्टी डिलीट करना है तो कैसे करोगे? सपोज एज को डिलीट करना है, एज प्रॉपर्टी जो उसको डिलीट करना है, तो डिलीट पर्सन डॉट एज, तो वो डिलीट हो जाएगा। देखो मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे अभी एज नहीं होगा, इसके अंदर दिख रहा है? नहीं है। इफ यू वांट टू एक्सेस इट पर्सन डॉट एज, देन व्हाट विल बी द वैल्यू? हाँ, इसमें Undefined. Undefined, sir. राइट, अनडिफाइंड। क्लियर? सो ऑब्जेक्ट लिटरल नोटेशन में कितना कौन कौन सी चीज अभी एक्सप्लेन किया मैंने, कि हाउ की कैन बी एनीथिंग, हाउ कैन आई एक्सेस एनी की यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, how can I modify the value, how can I add a new value, how can I delete any proper new key or key and value, and how can I delete any key and value. Is it clear now? Yes, sir. Anybody has any doubt? You can ask me right away. कोई डाउट है? No? No, sir. Okay. Let's move to the next chapter. How we can access the property dynamically using for in loop. For in loop किसके लिए यूज होता है? Why for in loop is used? For in and for off. For objects, sir, and Right. So foreign is used for object, right? So हम object ही पढ़ रहे हैं, तो उसका if you want to iterate each and every keys from here, right? And we want to print through loop. So foreign loop is used, we know. So foreign loop में हम dynamically कोई key अपने जैसे person of p, p means key. So यहाँ पे person of p मैंने बताया था, but p को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? बट ये प्लस डालनी पड़ेगी इधर, नहीं ये नहीं लेता ऐसा, तो इस तरीके से हम नहीं डाल सकते, इसमें पी ही डालना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली गेट कर लेता डायनामिकली। देखो आप जैसे यहाँ पे इफ यू वांट टू एक्सेस इट समथिंग लाइक दिस, रिमेंबर console.log person of last name, so it will not work। आपको मैंडेटरी यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? डबल कोड डालना पड़ेगा। Double को बट यहाँ पे देखो डबल कोड नहीं डालते हम ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये भी डायनामिकली आएगा p इक्वल टू लास्ट नेम, तो पर्सन ऑफ लास्ट नेम, सो वैल्यू विल बी प्रिंट ओवर हियर। सो यहाँ पे की प्रिंट होगा, फिर ये फैट एरो के बाद यहाँ पे उसका वैल्यू प्रिंट होगा, राइट? बट ये जब स्टैटिकली हम एक्सेस करने जाते हैं तो मैंडेटरी आपको की नेम के आगे
क्या देना पड़ेगा, डबल कोट डालना पड़ता है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। देखो, नेम इक्वल टू सीके, लास्ट नेम इक्वल टू प्रधान, age equal to 30, hobby equal to sports and cooking, right? Greetings is a method, greet is a method, ये फंक्शन की मेथड की डेफिनेशन ये पूरा दिख रहा है, राइट? मैं प्रिंट कर सकता हूँ डायनामिकली। सो फॉरेन लूप घुमा के मैंने यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। सो डायनामिकली हम किस तरीके से ये पर्सन कोई ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहते हैं विथ स्क्वायर नोटेशन, इज इट क्लियर? इसमें देखो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं करा, आइदर दिस और दिस, क्लियर? So it is pretty simple. जब तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट आया उसको प्रिंट करना चाहते हो तो you can use it. Now most important operator, rest operator आपने पढ़े थे, why rest operator is used? To copy the rest values in array. Yes, so rest operator is used in function parameter, but spread operator is used whenever you are copying an array or object, right? But syntax for both are similar, not similar, exactly same. The 3 dots and followed by the variable name, right? So you can see the spread operator is same as rest operator. So confuse नहीं होने का, rest operator is always used in as a function parameters, and you can gather all the rest of the parameter or argument pass at the time of function calling in rest operator. एंड रेस्ट ऑपरेटर का और एक रेस्ट्रिक्शन है कि रेस्ट ऑपरेटर जहां पे यूज कर रहे हो यू कैन नॉट राइट एनी फर्दर नेक्स्ट पैरामीटर आफ्टर द रेस्ट ऑपरेटर, राइट? सो रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है कि ये पूरा का पूरा जितना भी हम यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड में आर्गुमेंट पास करते हैं फंक्शन कॉलिंग में उसको एरे में कन्वर्ट करता है, मींस स्प्लिटेड वैल्यू को एरे में कन्वर्ट करता है। कौन? रेस्ट ऑपरेटर। रिमेंबर, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, एरे को स्प्लिट कर देता है, स्प्रेड कर देता है। क्लियर? ये दोनों के बीच डिफरेंस क्लियर है आपको? रेस्ट ऑपरेटर स्प्लिटेड वैल्यू को एरे में कन्वर्ट कर देता है, बट स्प्रेड ऑपरेटर एरे या ऑब्जेक्ट की जो कंबाइंड वैल्यू को वो स्प्लिट करके अलग अलग कर देता है, स्प्रेड कर देता है। स्प्रेड एंड रेस्ट, रेस्ट कन्वर्टिंग टू एरे, स्प्रेड कन्वर्टिंग टू सिंगल वैल्यू, स्प्रेड कर देता है। क्लियर? सो ये स्प्रेड ऑपरेटर कैसे काम करता है हम देखते हैं। अगेन आई एम यूजिंग an another object, little notation named person, and there are key like name, age, hobby. Hobby key is containing an array, address contain another object, greet contain a method, right? And ultimately this is an object literal. Clear? So मैंने पहले बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, जब मैं person2 में person1 को कॉपी करूं देन ये क्या प्रॉब्लम क्या होता था। अब मैं सिमिलरली कॉपी करता, कैसे कॉपी करता था ना, पर्सन को person1 में कॉपी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। देन ये क्या होता था, ये इक्वल टू में क्या आउटपुट आएगा बताओ? इक्वल ही आएगा, इक्वल ही आएगा क्योंकि वो सेम एड्रेस को कॉपी कर लिया, राइट? देखो ट्रू आया, यस और नो? कौन सी लाइन में? 21 में क्या इशू? ठीक है, ये तो कुछ और देखेंगे आपने इसमें क्या हुआ। तो ये ट्रू आया, you can see the output for this line number 16 is true, right? Why it is true? Because this person2 copy the person, means person's location. So in which location the person object is stored, it copy the same location. So now what is the main problem? If I want to change any of the value of any key, then it reflects the original one. देखो मैं यहाँ पे क्या किया कि पर्सन में कुछ भी चेंज किया
then I compare person and person 1 नहीं है, person and person 2, then you can, I am printing these two object by modifying the person object. देखो मैं यहाँ पे क्या किया, person object को ही modify किया, but person 2 भी change हो जाता है, you can see. देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या चेंज किया बता रहा हूँ. अब मैं क्या किया कि प्रोफेशन करके एक चीज यहाँ पे ऐड किया जो इनिशियली इट वाज नॉट देयर इन पर्सन ऑब्जेक्ट, राइट. एंड अंदर क्या किया मैंने, आई जस्ट पुश्ड एन अनदर एलिमेंट टू हॉबी एरे. हॉबी के अंदर एरे था, इसके अंदर मैं और एक वैल्यू इंसर्ट किया. क्या है वो, सिंगिंग. एंड सिटी एड्रेस के अंदर जो सिटी था उसका वैल्यू चेंज कर दिया मैंने. क्या चेंज किया, सूरत कर दिया. तो देखो ये तीनों में, ये तीनों की तीनों चेंजेस इसमें आ गया. ओरिजिनल जो मैंने पर्सन 1 में भी प्रिंट किया, ये पर्सन 1 नहीं है, पर्सन है, ठीक है. पर्सन में भी वही है, सेम चेंज हो गया. देखो यहाँ पे सिंगिंग इंसर्ट हो गया. फिर यहाँ पे जो एड्रेस था, एड्रेस के वहाँ सूरत हो गया अहमदाबाद की जगह, राइट. एंड व्हाट इज द अदर वन, सिंगिंग एंड प्रोग्रामर. प्रोफेशन पहले क्या था, प्रोफेशन. प्रोफेशन करके कोई यहाँ पे था नहीं है, तो ये प्रोफेशन करके और एक ऐड भी हो गया. तो ये पर्सन में भी चेंज किया मैंने, बट पर्सन 2 में भी सेम आ गया. देखो प्रोफेशन आ गया, इसमें सिंगिंग ऐड हो गया, यहाँ पे सिटी में सूरत आ गया, राइट. क्लियर. तो ये तो भी हम कॉपी कैसे करेंगे, सपोज कॉपी करते तो ये तो इफ आई वांट टू चेंज समवेयर इट विल रिफ्लेक्ट इन एनी अदर प्लेस आल्सो. So how we can copy it, right? So this copy I am using here, it is called shallow copy. It is not a deep copy, it is a shallow copy. Shallow copy means ज्यादा इसमें खाली एड्रेस ही कॉपी होता है, इसको shallow copy बोलते हैं. बट डीप कॉपी कैसे करूंगा मैं ना, यूजिंग रेस्ट ऑपरेटर, सॉरी यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर. जब एरे एंड ऑब्जेक्ट कॉपी करने के लिए हम ये 3 डॉट विथ वेरिएबल नेम यूज करेंगे, इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर. सो ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, अभी इसमें आउटपुट देखते क्या आउटपुट आता है. अभी क्या हुआ इसमें कि पर्सन में क्या हुआ, देखो प्रोफेशन तो है ही. देखो इसमें क्या हुआ, ये प्रोफेशन पर्सन 2 में नहीं हुआ क्योंकि मैंने खाली पर्सन में ही इंसर्ट किया, राइट. तब पर्सन 2 में नहीं हुआ क्योंकि पर्सन 2 में चेंज नहीं किया. बट इसमें ये भी चेंज हो गया, सूरत भी चेंज हो गया एंड एरे भी चेंज हो गया. देखो एरे में सिंगिंग भी इंसर्ट हो गया, राइट. तो इसमें क्या होता है मैं बता रहा हूँ. पहले स्प्रेड ऑपरेटर काम कैसे करता है, लेट मी एक्सप्लेन. अभी तो कोई डाउट है आपको, जो नॉर्मल कॉपी एंड मैंने चेंज किया दोनों में चेंज हो जाता है. इज इट क्लियर. नाउ लेट्स सी हाउ स्प्रेड ऑपरेटर वर्क्स. अब अभी स्प्रेड ऑपरेटर नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ कि पर्सन 2 करके एक बनाया एंड आई वांट टू क्रिएट एन अनदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट ओवर हियर simply. Then I want to spread all the first level keys, spread all the first level keys of initial array, जो भी जहां से कॉपी करने वाला हूं, कौन, पर्सन, राइट. तो ये क्या करेगा, पर्सन जो ऑब्जेक्ट है उसका जो भी फर्स्ट लेवल में की है, जैसे नेम है, एज है, हॉबीज है, एड्रेस है, बट कंट्री स्टेट सिटी फर्स्ट लेवल में नहीं है, वो एड्रेस के अंदर है. बट ये फर्स्ट लेवल कौन है, एड्रेस है और ग्रीट है. ये जितना भी की है इसको क्या करेगा, एक एक एलिमेंट में पहले स्प्रेड कर देगा और उसको एक एक एलिमेंट कॉपी करेगा और इसके ये ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट कर देगा. सो ये कैसे काम करेगा, फिजिकली कैसे काम करता है, सॉरी इम्प्लिसिटली कैसे काम करता है ये ना, एक एक एलिमेंट वो गेट करता है. जैसे ये कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट किया, फिर ये कॉपी करेगा, मतलब ये और एक एलिमेंट लेगा, मतलब ये ब्रांड न्यू एरे बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, राइट. समझ में आया. देखो जैसे मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, ऑफकोर्स इसका एड्रेस दूसरी जगह में बन गया, सिंपल, यस और नो. और इसके अंदर में क्या किया, 3 डॉट करके जब
पर्सन लिखा मैंने, तो ये क्या करेगा, पर्सन का एक एक एलिमेंट को स्प्लिट करके ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर पुश करेगा। जैसे एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका एड्रेस अलग बन जाएगा, क्योंकि हमको क्या यहाँ पे इंटरप्रेट क्या कर रहा है कि whenever you create any another object, whether it is empty or anything, so it will store in another memory location, right? तो मैंने यहाँ पे अल्टीमेटली क्या किया कि पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया, इसके बाद एक एक एलिमेंट यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर इंसर्ट किया। तो ये क्या करेगा, एक ब्रांड न्यू एरे क्रिएट करता है, ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट, एंड इसके अंदर एलिमेंट खाली कॉपी करता है ऊपर से, राइट? इज इट क्लियर? नो सर। नो। ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या, स्प्रेड ऑपरेटर करता है क्या, पहले बताता हूँ। ये क्या करता है, जहां से तुम कॉपी करते हो ना, ये पर्सन से कॉपी करना चाहता हूं मैं, तो पर्सन का पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं करता हूँ। ये क्या करता है स्प्रेड ऑपरेटर, ये खाली अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, ये जो 3 डॉट पर्सन, ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट का हर एक फर्स्ट लेवल एलिमेंट, तो ये फर्स्ट लेवल एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा और एक एलिमेंट है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंट है, राइट? और ये एक एलिमेंट है, इसको एक एक करके स्प्लिट कर देगा। मतलब तुम ये अलग अलग एलिमेंट यहाँ से कॉपी कर रहा है, स्प्लिट करके एक एक कॉपी कर रहा है, और किसके अंदर स्टोर कर रहा है, एक ब्रांड न्यू एरे जो मैंने बनाया था यहाँ पे, ये एक एरे बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, यस सर। राइट? तो ये दोनों ऑब्जेक्ट कभी भी सेम नहीं होगा। अभी तुम ये सेव करके कंपेयर करने जाओगे, ये जो लाइन नंबर 16 में, वी कैन गेट फॉल्स। क्यों? बिकॉज आई हैव क्रिएटेड अनदर ऑब्जेक्ट व्हिच इज ए ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके अंदर एलिमेंट क्या होगा, कहां से लाऊंगा मैं, आइदर मैं इंडिविजुअली डिफाइन करूंगा और मैं कॉपी करूंगा। तो कॉपी करने के लिए मैंने पर्सन ऑब्जेक्ट से कॉपी किया, तो ये एक ब्रांड न्यू एरे तो बन ही गया। और ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा कि हर एक एलिमेंट पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर हर एक एलिमेंट को वो सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करके एक एक करके इधर ब्रांड न्यू एरे में पुश कर देगा, राइट? तो ये बन जाएगा person2 एज एन ब्रांड न्यू एरे। तो ये कॉपी तो हुआ, बट वो एड्रेस कॉपी नहीं किया। वो क्या किया ना, हर एक एलिमेंट एक ब्रांड न्यू एरे बनाया और पर्सन की हर एक एलिमेंट को स्प्लिट करके स्प्रेड करके इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। नाउ क्लियर? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. pretty clear, right? So मैंने कोई भी एरे से कोई भी ऑब्जेक्ट से मैंने कॉपी करना चाहूंगा तो एरे में भी ऐसे ही होगा एंड ऑब्जेक्ट में भी ऐसे ही होगा। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कॉपी कर रहा हूं तो इस तरीके से मैंने कॉपी करूंगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर जो जो ऑब्जेक्ट से मैं कॉपी करने वाला हूं देन वो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या किया मैंने, स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर डाल दिया। सो 3 डॉट विद ऑब्जेक्ट नेम, 3 डॉट क्या करेगा यहाँ पे स्प्रेड कर देगा, जो भी जितना भी एलिमेंट है उसको स्प्रेड कर देता है और इसमें कॉपी कर दिया। तो ये क्या होगा, अभी ब्रांड न्यू एरे तो बन गया, बट ये डीप कॉपी, इसको क्या बोलते हैं, ये कॉपी हुआ बट इसको बोलते हैं डीप कॉपी। बट जब डायरेक्ट कॉपी करते थे ये person2 को पर्सन से, तो उसको बोलते थे शैलो कॉपी, राइट? बट यहाँ पे भी एक इशू है, यहाँ पे जो ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है कि फर्स्ट लेबल की को ही वो ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट जैसा कंसीडर करता है, बट इसके अंदर जो ये ऑब्जेक्ट है ये भी एक एड्रेस में स्टोर हुआ होगा। अभी इसमें क्या होगा, ये तो डायरेक्ट कॉपी किया होगा उसने, इसका रेफरेंस कॉपी किया होगा, ये ब्रांड न्यू नहीं बना। अभी ये एड्रेस जो है ये की एक ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट जैसा इंसर्ट होगा, बट इसके अंदर भी और एक ऑब्जेक्ट है, ये भी कहीं पे स्टोर हुआ होगा, राइट? बट ये क्या करेगा, ये जब एड्रेस यहाँ पर कॉपी होगा बट एड्रेस के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली उसका रेफरेंस ही कॉपी किया होगा। सेकेंड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये फर्स्ट लेवल ऑब्जेक्ट था, राइट? इसका रेफरेंस हम कॉपी नहीं किए क्योंकि यहाँ पे ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, राइट? बट ये बट अंदर जो भी एरे एंड ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, उसका रेफरेंस ही कॉपी करता है। तो इसमें जो भी चेंज होगा ये person2 में भी चेंज हो जाएगा, जो वही हुआ
जो फर्स्ट लेवल में सपोज मैंने एक इंसर्ट किया प्रोफेशन, प्रोफेशन इज ए फर्स्ट लेवल, बट सिटी डॉट सिटी ये सेकेंड लेवल है एरे के अंदर, सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर, ये सिटी एक सेकेंड लेवल में है। सेम मैं एरे में जो पुश कर रहा हूँ हॉबीज है, ये हॉबीज के अंदर जो पुश हो रहा है, ये हॉबीज क्या है, एरे, राइट। ये जो एरे है ये इसका भी एड्रेस अलग होगा, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर और ये एरे एंड ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों का रेफरेंस अलग होगा, राइट। और ये रेफरेंस को हम स्प्लिट नहीं कर रहे, रिमेंबर, नया एरे नहीं बना रहे, इसका रेफरेंस ही कॉपी कर रहे। तो इसमें जो सेकेंड लेवल में हम कुछ भी चेंज करेंगे तो ये %2 में चेंज हो जाएगा। बट फर्स्ट लेवल में सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि एज इक्वल टू प्रोफेशन इक्वल टू प्रोग्रामर, ये फर्स्ट लेवल है, इसमें एक प्रोफेशन करके फर्स्ट लेवल में की ऐड किया, वो भी नहीं काम करेगा। सेम सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एज का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एज है, एज में यहाँ पे 30 है और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं 40 कर रहा हूँ, तो ये चेंज नहीं होगा %2 में। देखो यहाँ पे पर्सन एंड %2 प्रिंट कर रहा हूँ, तो पर्सन में क्या हो रहा है, पर्सन में ही चेंज किया तो पर्सन में एज इक्वल टू 40 हो गया, बट %2 में एज इक्वल टू 30 ही रहा। पर्सन में मैंने प्रोफेशन करके एक फर्स्ट लेवल में ऐड किया, तो फर्स्ट लेवल में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट लेवल लेयर मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट दूसरे लोकेशन में स्टोर करवाया मैंने, राइट। बट ये जो अंदर की ऑब्जेक्ट और एक यहाँ पे बन रहा है ना, ये देखो यहाँ पे एक बन रहा है एड्रेस के अंदर और एक ऑब्जेक्ट बना, ये तो इसका क्या रेफरेंस ही कॉपी हुआ था। तो मैं यहाँ पे जैसे सूरत किया तो इसके अंदर भी पर्सन के अंदर भी सूरत हो गया। देखो सेम एरे में देखो यहाँ पे सिंगिंग ऐड हो गया, यहाँ पे भी सिंगिंग ऐड हो गया, बट मैंने एक्चुअली ऐड किया था इनसाइड पर्सन ऑब्जेक्ट, बट इट रिफ्लेक्ट इनसाइड %2। तो ये इश्यू कैसे, ये तो हो गया, डीप कॉपी तो हुआ ही खरी, बट the main problem is inside, if there is an object inside object or there is an array inside object, then it will create a problem। तो आपको उस केस में भी सेम वे फॉलो करना है। कैसे? जैसे मैंने नीचे बताया हुआ, देखो अभी यहाँ तक कोई फर्स्ट लेवल तक कोई क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. किसको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन गो मूव फर्दर। ओके, सो सेकेंड लेवल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लेट्स सी सेकेंड लेवल को हम कैसे करेंगे। फर्स्ट लेवल तो आपने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किए, तो फर्स्ट लेवल का कॉपी हो गया, वो भी डीप कॉपी, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो सेकेंड लेयर के लिए हम क्या करेंगे? व्हाट इज द वे? let's comment this, okay, and uncomment this one। ओके, सो यहाँ पे मैंने किया कि person3 करके ऑब्जेक्ट को मैंने पर्सन से कॉपी किया मैंने, राइट। बट मैं क्या किया, हॉबीज और एड्रेस जो था उसके अंदर फिर क्या किया मैंने, स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया। देखो पर्सन डॉट हॉबीज, मैं पर्सन के अंदर हॉबीज के अंदर जो भी एलिमेंट था उसको भी स्प्रेड करके ये एरे में स्टोर किया। सो व्हाट डज इट मीन? सो पहले ये मैं आपको प्रिंट करके दिखा, एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर देता हूँ एंड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, जैसे मैंने बताया था, एक एम्प्टी एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको मैंने एक person3 करके एक ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इन न्यू मेमोरी लोकेशन, राइट। नाउ मुझे क्या करना है, पहले फर्स्ट लेवल एलिमेंट को पर्सन से कॉपी करना है। तो कैसे करूंगा मैं? इसके अंदर मैंने स्प्रेड ऑपरेटर ऑफ पर्सन, अभी क्या करेगा, ये पर्सन का एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी करेगा, यहाँ से एक एक की फर्स्ट लेयर की कॉपी करेगा और इसमें इंसर्ट कर देगा। तो अभी कैसे हो गया ना, ये सब आ गया, बट इसमें देखो जैसे हॉबीज एंड कंट्री दे आर अगेन रेफरेंस वैल्यू, सो दे हैव देयर ओन एड्रेस, सो हमको उसको भी कॉपी करना पड़ेगा। क्या करेंगे तब हम पर्सन एंड हॉबी को यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के अंदर मैनुअली डालेंगे, तो इसमें बाय डिफॉल्ट सब कुछ आ गया। अभी ये दो वैल्यू को हम ओवरराइड करते हैं, कैसे करेंगे?
ना यहाँ पे दो वैल्यू की डालते। जैसे पर्सन के अंदर हम की कैसे डालते, कोई ऑब्जेक्ट के अंदर की कैसे डालेंगे, जैसे नया कोई की डालते तो कैसे, नॉर्मली की जैसे डालते, कैसे डालेंगे, कैसे डालेंगे, जैसे हॉबीज है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसके बाद क्या करूंगा मैं, हॉबीज करके की डाला, और एक हमारे पास क्या की है, एड्रेस करके की, ये दोनों डाला, ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने मॉडिफाई करना है मुझे, ठीक है। अब हॉबीज के अंदर क्या था, एरे, तो वो एरे रेफरेंस कॉपी हो जा रहा था, so it was copy the array reference, right? So now I want to create another empty array just like empty object in the parent I'm create किया, और इसके अंदर मैंने ये जो एरे है उसको स्प्रेड करके लूंगा मैं। कैसे स्प्रेड करूंगा, तो उसको पहले एक्सेस कैसे करूंगा ना, पर्सन डॉट हॉबीज, राइट। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, पर्सन डॉट हॉबीज, तो ये क्या करेगा, एक ब्रांड न्यू एरे क्रिएट करेगा, उसके अंदर हॉबीज के अंदर जो भी एलिमेंट था उसको कॉपी करेगा और इसके अंदर स्टोर कर देगा, न्यू ब्रांड न्यू एरे बना देगा, ठीक है। सेम ये एड्रेस में भी क्या करेगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा मैं, एंड इसके अंदर पर्सन डॉट एड्रेस से जितना भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, की ऑब्जेक्ट का वैल्यू है, उसको मैं कॉपी कर लूंगा। तो पहले ये पर्सन क्या करेगा, सब जितने सारे ऑब्जेक्ट था इसका की कॉपी कर लिया, और ये दो की को मैंने फिर से क्या किया, ओवरराइड करवा दिया विथ न्यू ब्रांड न्यू एरे एंड ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ADDRES सही है, कॉमा नहीं है इधर, क्लियर। तो सेम बन गया, जो ऊपर मैंने लिखा था वही बन गया आपके पास। अभी मैं कुछ भी चेंज करूंगा ना, अभी कुछ भी चेंज करूंगा मैं कहाँ पे, सिमिलर लाइक दिस, मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, अभी इसी में ही करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ ये कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंज करूंगा, ना यहाँ पे पर्सन 3 को पर्सन के साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि मैंने अब पर्सन 2 नहीं रखा, अभी इसको 3 में कॉपी कर लिया, 3, देन ये पर्सन डॉट प्रोफेशन में चेंज किया, जिस में भी चेंज करूंगा, अब मैं चेक करूंगा इसमें क्या आउटपुट निकल रहा है। जैसे यहाँ पे प्रिंट किया था दोनों, आई वांट टू प्रिंट ओवर हियर, अब पर्सन 1 प्रिंट करूंगा, पर्सन प्रिंट करूंगा एंड पर्सन 3 प्रिंट करूंगा, राइट, क्योंकि पर्सन 3 मैंने बनाया। अभी सेम मैंने क्या किया, प्रोफेशन भी ऐड किया यहाँ पे, और एज में भी चेंज किया, बट मैंने ये दोनों तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे एरे एंड ऑब्जेक्ट में, इनर एरे ऑब्जेक्ट में चेंज किया, बट वो भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा अभी। देखते हैं आपने यहाँ पे, पहले तो ये फॉल्स ही होगा, ये कंपेयर जो किया मैंने यहाँ पर, ये फॉल्स ही होगा, क्योंकि पर्सन 3 एंड पर्सन आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट लोकेशन, राइट। नाउ इसके अंदर देखो पर्सन प्रिंट किया, पर्सन के अंदर मैंने इंडिया और ये जो एड्रेस है यहाँ पे सूरत कर दिया था, तो ये सूरत है। यहाँ पे एक प्रोफेशन करके ऐड किया था, इसमें ऐड हो गया, इसमें सिंगिंग ऐड किया था, इसमें सिंगिंग ऐड हो गया, राइट। पर्सन 2 में देखते, यहाँ पे एड्रेस के अंदर पहले अहमदाबाद था, अभी भी अहमदाबाद ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। सेम एरे के अंदर सिंगिंग ऐड नहीं हुआ, कुकिंग स्पॉट एंड कुकिंग ही रहा, और इसमें प्रोफेशन करके जो नया ऑब्जेक्ट ऐड किया था, की ऐड किया था, राइट, प्रोफेशन इक्वल टू प्रोग्रामर, इसमें कुछ भी नहीं आया पर्सन 2 में, क्योंकि मैं पर्सन से चेंज किया, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। तो डीप कॉपी विथ इनर ऑब्जेक्ट एंड इनर एरे कैसे करना है ये पता चल गया आपको। स्पेशली आपको यही समझना है, ये जैसे एम्प्टी एरे और एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया, इसके अंदर मैंने एक एक एलिमेंट को स्प्रेड ऑपरेटर करके लिया, तो ये पर्सन को एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट पर्सन लिखा मैंने, पर्सन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है पर्सन डॉट हॉबीज, तो हॉबीज क्या है, एरे,
तो मैंने वो एरे को एक्सेस करने के लिए पर्सन डॉट हॉबीज लिखा, बट उसको यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर मैंने स्प्रेड कर दिया, बट उससे पहले मैंने एक एम्प्टी एरे ले लिया। सेम ये मेन ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर आई वांट टू क्रिएट एन अनदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट फॉर एड्रेस, तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड एलिमेंट आई एम कॉपिंग फ्रॉम एड्रेस की फ्रॉम पर्सन डॉट एड्रेस। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अभी थर्ड लेवल होगा तो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये पर्सन के अंदर हॉबी के अंदर और एक ऑब्जेक्ट है, तो आपने यहाँ पे और एक की डालना होगा। कैसे ना, ये हॉबी के अंदर एरे है और इसके अंदर फिर डालना होगा, ये एरे के अंदर डालना होगा। यू कैन ऐड अनदर वन लाइक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एम्प्टी एरे, राइट? सपोज एड्रेस के अंदर कुछ और एरे होगा, तो वो फॉर एग्जांपल एरे फिर कॉलन, फिर यहाँ पे और एक एरे होगा और इसमें अगेन कॉपी करोगे, जो भी नाम होगा उसका नाम एरे, राइट? पर्सन डॉट हॉबीज डॉट एरे, राइट? उसको स्प्लिट करके मैं ये ARR के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। यस और नो? तो इट इज प्रेटी सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट भी नहीं करना है हमको, राइट? ये अभी है नहीं इसलिए एरर दिखा रहा है कुछ। एक्सपेक्टेड कॉमा तो दिया हुआ है ना? तो इस तरीके से हम जितने अंदर आपको कॉपी करना है, जिसको कॉपी करना है उसका एक्सेस करो और उससे पहले 3 डॉट लगा देंगे तो वो उसको स्प्रेड कर देगा। देखो जैसे ये मैंने माउस ओवर किया, मुझे दिखा रहा है ये किसके अंदर जा रहा है ना, ये पर्सन के अंदर, एड्रेस के अंदर, हॉबीज के अंदर जा रहा है। ये किसको रेफर कर रहा है? पर्सन, वो दिखा रहा है, राइट? ये हॉबीज के अंदर जाता हूँ, हॉबी के अंदर एरे ऑफ स्ट्रिंग दिखा रहा है वो, और ये ARR के अंदर, ये इसके अंदर कुछ है नहीं इसलिए वो एन ही दिखा रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से जितना भी अंदर अंदर जाओगे आप इस तरीके से उसको स्प्रेड कर सकते हो। डीप कॉपी बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉपी करना ऑब्जेक्ट या एरे को, बट विथ deep copy means it will not affect the reference, the original copy, right? But there are some other functions and methods available in JavaScript which you can create a brand new array from existing array and existing object. I will explain you later on. Especially array में होगा, object में तो this is the way spread operator, but in array there are different way, different predefined methods available. Okay, so till now do you have any question? Then destructuring will complete tomorrow and this then call apply tomorrow. Okay, so for today we can conclude. सर ये वीडियो